সকলো ৰাইজে এক হাত চাপৰি তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমি সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধাৰ জগত প্ৰসাদ নন্দা ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছো। তেওঁ এখন ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আদৰণি জনাইছে আৰু এটা শিৱদলে তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয়ক আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈদেৱে সম্বৰ্ধনা জনাব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈদেৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক সন্মানীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈদেৱে সম্বৰ্ধনা জনাব। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় মুখপাত্ৰ সন্দীপ পাত্ৰ ডাঙৰীয়াক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আৰু এটা ৰংঘৰে সন্মানীয় সাংসদ মহোদয় সম্বৰ্ধনা জনাব। আৰু আমাৰ তিনিওজন আমাৰ জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা শিৱসাগৰ জিলাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলে সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয়ক আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। আৰু জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদকক এখন হেংদাঙেৰে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। আৰু শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন হেংদাং আমি দিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছো। আৰু তাই পাকেৰে এটা সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে জিলা সাধাৰণ সম্পাদক মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো। আমি ভৱেশ দাকো এটা তাই পাকেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আৰু এখন হেংদাঙেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে জিলা বিষয়ববীয়াসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছো। আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় মুখপাত্ৰ সন্দীপ পাত্ৰ ডাঙৰীয়াক এখনি হেংদাঙেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে ৰূপম দত্ত ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছো। আৰু চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ক আমি তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আৰু সোণাৰী সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাব তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাইছো।
আৰু শিৱসাগৰ জিলা OBC মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা সমন্বয় জনাবলৈ আহিবলৈ হৰে কৃষ্ণ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিখন আমি স্কুলৰ খেলপথাৰত আমি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেই স্কুলৰ সন্মানীয় প্ৰধান শিক্ষক তথা পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি আৰু সহ শিক্ষকসকলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে। গতিকে আমি তেওঁলোকক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে। তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমি ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আমি বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। সকলোৱে কওক মোৰ লগত, ভাৰত মাতা কি। আৰু জোৰছে ক'ব লাগিব, ভাৰত মাতা কি। বিজেপি বিজেপি আদৰণীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজী আদৰণীয় জেপি নাড্ডাজী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰত মাতা কি। ধন্যবাদ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি এই পবিত্ৰ স্থলীত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় राष्ट्रीय सभापति, हमारा बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी, एक सभात आमार सहित उपस्थित थका आमार असम सरकाৰৰ सन्मानीय मंत्री तथा এই जिलार अभिभावक मंत्री श्रद्धेय डॉक्टर रनोज पेगु डांगरिया, এই जिलार सन्मानीय मंत्री श्रद्धेय যোগেন मोहन डांगरिया, যোৰহাট लोकसभा समष्टिर श्रद्धेय सांसद भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेशर सन्मानीय उपसभापति तपन गगৈ डांगरिया, आज एक सभात उपस्थित थका आमार सन्मानीय विधायक रूपज्योति कुर्मी डांगरिया, सुशांत बरगोहाई डांगरिया, धर्मेश्वर कोঁৱৰ डांगरिया, भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेशर सांगठनिक साधारण सम्पादक आदरणीय फणीनाथ शर्मा डांगरिया, आमार साधारण सम्पादक दीप्लु रंजन शर्मा डांगरिया, भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चार भारतीय जनता युव मोर्चार सन्मानीय सभापति बंधु सिद्धांशु अंकुर बरुआ डांगरिया, যোৰহাট जिलार सन्मानीय सभापति हेमंत कलिता डांगरिया, शिवसागर जिलार सन्मानीय सभापति मयूर बुढ़ागोहाई डांगरिया, चराइदेउ जिलार सन्मानीय सभापति तासा डांगरिया, मंचत उपविष्ट आमार सकलोरे ज्येष्ठ नेता राज्यसभार सांसद कामाख्या प्रसाद तासा डांगरिया, आटाइकेइখন जिलार सन्मानीय प्रभारी सहप्रभारी प्राक्तन विधायक लगते ठेंगाल और देउरी काउन्सिलर सन्मानीय सदस्यসকল, सीएमসকল, मंचत उपविष्ट ज्येष्ठ नेतृबृंद और যোৰহাট लोकसभा समष्टिर विभिन्न बुथर पर अहा मोर परम श्रद्धार कार्यकर्ता बंधु बाइदेउসকল, आजिर এই मंगलमय मुहूर्तत मैं आपनालोक आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करिछु और सकलोके थिय होई सन्मानर राष्ट्रीय सभापति डांगरियाक उष्म आदरणीजने हाथ चापरि उष्म आदरणीजনৰ কাৰণে आह्वान जनाइछु।
बोलो भारत माता की, भारत माता की। বিজেপি, বিজেপি। ধন্যবাদ। আজি ইমান প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আপোনালোকে ইয়াতে যে উপস্থিত হৈছে, দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 4 বছৰ হ'ল, যে ইমান সময় আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ এই জনসভা কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত উপস্থিত থাকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন স্বাভিমানী, এজন নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যি পৰিচয় দিছে, তাৰ বাবে মই আপোনালোক সদুদিলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। 2014 চনত দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে অধিষ্ঠিত কৰিছিলে। এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাও আপোনালোকে সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰিছিলে। আজি আহি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত 9 বছৰ পূৰ্তি কৰি আমি 10ম বৰ্ষত ভৰ্তি দিছো আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ আগ্ৰহ মৰ্মে আমাৰ তেজস্বী নেতা, যাৰ কুশল নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমগ্ৰ হিন্দুস্তানত, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পৰম শ্ৰদ্ধেয় জগত প্ৰসাদ নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি এই বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিছো আৰু প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টি স্তৰত একোখনকৈ আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লৈ আমি কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছো। সেই অংশ হিচাপে আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰো হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা ওলাই আহিছে যে মোদীজীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যোৱা 9 বছৰে ভাৰতবৰ্ষত যিদৰে উন্নয়ন হ'ল, ভাৰতবৰ্ষৰ যোগাযোগ যাতায়াত আন্তঃগাঁথনি, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত আজি যিদৰে আগবাঢ়িছে, তাৰ বাবে আমি মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সকলোৱে এটা হাত চাপৰি দিব লাগে। ইয়াৰ পৰা আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক উষ্ম আদৰণি জনাইছো। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাৰণে আজি 45 কোটি মহিলাই জনধন যোজনাত একাউণ্ট খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি উজ্জ্বলা আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাৰণে। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত আমাক 3 বাৰিকৈ যদি ভেকচিন দিবলৈ সক্ষম হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। ঠিক তেনেদৰে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ জৰিয়তে 90 কোটি জনতাক তেখেতে আমাক খাদ্য প্ৰস্তুত দিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক তেনেদৰে তেখেতে যিদৰে কৈছে যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্ৰয়াস, যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমাহিত কৰি ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট যদি কৰিবলৈ কোনোবাই সক্ষম হৈছে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বাইদেউসকল, আজি আমাৰ মাজত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে। আজি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমত সকলো জিলাতে হস্পিটেল, সকলো জিলাতে মেডিকেল কলেজ, সকলো জিলাতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, আজি কাঠৰ দলং পকীকৰণ হ'ল, আজি মংগল অংগনবাদী চেণ্টাৰ হ'ল, আজি শিক্ষা ব্যৱস্থাক নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে। নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অসমতো লাগু কৰা হৈছে। 27 লাখ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ যদি ব্যৱস্থা কৰিছে এইখন চৰকাৰে কৰিছে। 8 লাখতকৈ অধিক খিলঞ্জীয়াসকলক ভূমিৰ পট্টা দিবলৈ যদি সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে হৈছে। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ মাজত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে সম্বোধন কৰিব। মই বহুত দীঘলীয়া ভাষণ নাৰাখো, সকলোকে মই আদৰণি জনাইছো। আপোনালোকে প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি আজি এই বিশাল ৰেলীত যি উপস্থিত থাকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম কাজ ত্বৰান্বিত কৰাৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছে, পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভাষণ ইমানতে সামৰিছো। সকলোৱে কওক ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। 2 হাত দাঙি কওক জয় জয় শ্ৰীৰাম। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধাৰ জগত প্ৰসাদ নাড্ডা ডাঙৰীয়াক আমি এতিয়া বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। बोलिए भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री भवेश कलिता जी, हमारे जोरहाट के बहुत ही सम्मानीय सांसद और लोकसभा में मेरे साथी भाई तपन गोगोई जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्रीमान कामख्या प्रसाद तासा जी, रनोज पेंगू जी हमारे मंत्री, जोगेन मोहन जी मंत्री असम सरकार, संवित पात्रा जी, मयूर जी हमारे जिला के अध्यक्ष और सभी विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग आदरणीय मोदी जी के 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं जहां आपको इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश को आगे बढ़ाने का काम किया, देश में नई ऊर्जा और स्फूर्ति भरकर देश को दुनिया के समक्ष एक मजबूत राष्ट्र के रूप में रखने का काम किया है। हम 9 साल के पहले और 9 साल के बाद भारत की 2 तस्वीर देखते हैं। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचारी देशों में शामिल भारत था। 2014 से पहले का भारत, हम लोगों ने पॉलिसी पैरालिसिस का भारत देखा था। 2014 से पहले का भारत निर्णय न लेने वाला भारत देखा था। 2014 से पहले का भारत स्कैम से भरा हुआ था। 2G, 3G, 4G, 5G, 4G, हर तरीके का स्कैम चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के द्वारा निर्णय लेने वाली सरकार, मजबूत सरकार, बुलंद सरकार और देश में आगे बढ़कर के देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे सेवा हो, चाहे सुशासन हो, फिर चाहे गरीब कल्याण हो, तीनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की और आगे बढ़ा है। अगर हम याद करें तो हमको ध्यान में आएगा कि एक समय में दुनिया में भारत की स्थिति क्या थी, और आज जब हम देखते हैं तो हमारे को ध्यान में आता है कि दुनिया में भारत दुनिया के देशों में एक इज्जत के साथ खड़ा देश है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 से 2022 में 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है। और इस साल 2023 में यह खर्च एक साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, 10 लाख करोड़ रुपीस। और इसी तरीके से 2014 में ये हाईवे जो बन रहे हैं, ये एक दिन में 12 किलोमीटर सड़क बनती थी। आज 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से ये सड़क बन रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें तो 54,000 किलोमीटर की इंफ्रास्ट्रक्चर की सड़क बन गई है।
18 वंदे मातरम ट्रेनें चल पड़ी हैं और आने वाले 2 सप्ताह के अंदर 23 वंदे मातरम ट्रेन चल पड़ेगी। वह भी हम आपके सामने बताना चाहते हैं। 37,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक यह भी इलेक्ट्रिफाइड हो गया है और इसके साथ साथ 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने थे, 74 एयरपोर्ट्स, और अभी 70 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट्स बने थे और अभी 9 साल के अंदर मोदी जी ने 74 एयरपोर्ट बनाए हैं और नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट बनाए हैं, 16 एयरपोर्ट बने हैं, 7 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की बात करें, सुरक्षा की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो बॉर्डर में 13,595 किलोमीटर की सड़क बनी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो डोकलाम एयर स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के साथ साथ हमारा सर्जिकल स्ट्राइक ये बताता है कि भारत की इच्छा शक्ति, कोई भी बुरी नजर से भारत के बॉर्डर को देखेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसकी तैयारी हुई। मित्रों, इसके साथ साथ अगर हम देखें आत्मनिर्भरता के दृष्टि से तो आज भारत AK-203 बना रहा है। आज भारत प्रचंड हेलीकॉप्टर बना रहा है। आज भारत ने नौसेना के बेड़े में INS विक्रांत, इसको भी शामिल करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसी के साथ साथ अगर हम सुशासन की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 22 लाख करोड़ रुपए सीधा बेनिफिशियरी के खाते में डालने का काम मोदी जी ने किया है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कॉमन सर्विस सेंटर 5 लाख से ज्यादा खुले हैं। 3 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर को लाया गया है। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है और स्टील में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं और मोबाइल में 97% मोबाइल आज भारत बना रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, चाहे आत्मनिर्भर की बात करें, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम विकास की बात करें, हर दृष्टि से भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, यहां पत्रकार मित्रों से मैं बात करना चाहता हूं। हमारे कांग्रेसी भाई जो बड़े अनपढ़ बन करके घूम रहे हैं, वो तमाम तरीके की बात आपके बीच में कर रहे हैं। वो महंगाई की बात करते हैं। मैं चाहूंगा मेरे पत्रकार भाई मेरी बातों को जरा नोट कर लें और जो लोग महंगाई की बात करते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ की है तो वो भारत है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ 2.2% है। जर्मनी की ग्रोथ 2.6% है। साउथ कोरिया की ग्रोथ 4.1% है। कनाडा की ग्रोथ 4.1% है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ग्रोथ 5.9% है और इंडिया, भारत 8.7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो भारत का इन्फ्लेशन 4.25 से नीचे है। यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लेशन 4.9% है। फ्रांस का 5.1% है। यूरोप का 6.1% है। यूनाइटेड किंगडम का 8.7% है। और खाद्य सामग्री की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की महंगाई 6.7% है और भारत की महंगाई 2.9% है। यह भी हमको समझना चाहिए। फ्रांस की महंगाई 14% है। पाकिस्तान की महंगाई 48% है। इसलिए अगर हम महंगाई की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, विकास की बात करें
तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत की महंगाई सबसे कम है और भारत की ग्रोथ सबसे आगे तीव्र गति से चल रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की बात अगर मैं करूं तो मेरे ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देकर के आज भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई है और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की तो आज 9 करोड़ घरों में जल पहुंचाया गया है और 33 लाख घरों में असम में जल पहुंचाया गया है। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो 10 करोड़ 78 लाख लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, तो असम में 11 लाख लोगों को यह किसान सम्मान निधि दी गई है। अगर हम पॉवर्टी की मैंने बात की, आपके सामने मैंने कहा कि किस तरीके से गरीबी और अति गरीबी को कम किया गया है, वो भी हमारे सामने आता है। दुनिया में भारत की छवि को देखें। आज भारत G7 में बुलाया जाता है। आज भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है और यहां गुवाहाटी में भी G20 की आपने मीटिंग की। मुझे पता लगा कि अरुणाचल प्रदेश में C20 की मीटिंग हुई है। यह बताता है कि बदलते भारत की तस्वीर, क्वाड में भारत, ब्रिक्स में भारत, ITU में भारत, SCO में भारत, कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां मोदी जी का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी यू आर दी बॉस। यह समझ में आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज मोदी जी की छवि और भारत की छवि कहां पहुंच गई है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आता है और सिडनी में मिल करके जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप अगले महीने अमेरिका आ रहे हैं, आपको हम स्टेट डिनर देने वाले हैं। दुनिया में होड़ लगी हुई है कि मोदी जी के डिनर में हमको भी इनवाइट करो। यह परिस्थिति आ जाकर के खड़ी हुई है। यह भारत की बदलती हुई तस्वीर के बारे में बताता है। मित्रों, मैं अगर असम की बात करूं तो आज मैं कह सकता हूं, चाहे बोगीबील ब्रिज का बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात हो, चाहे हमारे डिब्रूगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की बात हो, फिर चाहे नवगांव में नया मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, या फिर चाय के बागानों में मूविंग एम्बुलेंस दे करके स्वास्थ्य की सेवा की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एक विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पहले अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स के साथ भाई को भाई से लड़ाने की पॉलिटिक्स, ये असम की संस्कृति की रक्षा करते हुए हमारे चाहे भूपेन हजारिका हो, चाहे हमारे बारदोली साहब हो, उनको भी भारत रत्न देने का काम किया है, तो वो हमारे एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर शंकर देव को किसी ने याद किया तो वो भी हमारी सरकार ने याद किया। अगर हमारी संस्कृति को किसी ने याद किया तो वो भी हमारी सरकार ने याद किया। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि 9 साल में जो विकास के काम असम में हुए हैं, जो विकास के काम भारत में हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम जहां धन्यवाद मोदी जी का भी करते हैं, वहीं आप लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का काम और असम की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम आप सब ने किया है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहम।
সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ জগত প্ৰসাদ নন্দা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি জনসভাত উপস্থিত হোৱা আমি প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো প্ৰতিকূল বতৰৰ আপোনালোকে নেওচিও আহি এই আমাৰ সভাত আপোনালোকে উপস্থিত হৈছিলেহি। যথেষ্ট সভাৰ মাজতে বৰষুণ দিয়াৰ পিছতো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইয়াত বহি থকাৰ বাবে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভকত বৈষ্ণৱক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাক ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাক যি আশীৰ্বাদ দিলে আমি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাকে আমি শ্ৰদ্ধা ভৰা সেৱা নিবেদন কৰি আজি আমি সভাৰ কাম সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি বন্দে